Hello students. Today we need to work on vocabulary section. We have been talking about idiom phrase and I've talked about a few words and we have talked about how to speak English. We have made certain videos on that. So let's begin another part of the session apart from grammar and certain other things. The vocabulary, how do we really deal with these questions of vocabulary? Okay, now this is something we say, begin with this, odd one out, simply telling you this word means this, perfectly all right, you just note down. But now here we have to apply our knowledge, what it is. This one question, say like this, I begin with this question. 4 words are given to you, we have to find out the word which is odd one out. Okay, so let's focus on this. Adjure, abdicate, abnegate and abjure. These are the 4 words given to you. You have to find out which one is not similar. 3 are the same, having the same kind of meaning, but one is odd one out. Okay. Now if you just see these 4 words, you can very well understand what? That 3 words are beginning with word like AB, AB and AB. It means what? If you recall, when we were doing this word par made easy, we realized the words beginning with AB are having a negative connotation. It means they have some kind of meaning where you have some negative this thing, and this is AD. So this is adjacent, adjoining, adjure. It means AD words will definitely have a different meaning from AB words. So that is what the right answer is, first of all. तो जस्ट लुकिंग एट द वर्ड आई कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड कि यार ए बी वाले वर्ड सब अलग तरफ जा रहे हैं और ए डी वाला जो है मेरा एक तरफ जा रहा है, तो मेरा आंसर सीधा सीधा आ जाता है. परफेक्ट. नो इफ यू वांट टू नो एब्डिकेट, व्हाट यू मीन बाय द वर्ड एब्डिकेट? एब्डिकेशन, इफ यू नो, वी नो द वर्ड एब्डिकेशन व्हेन द किंग hands over his empire to his son. When he voluntarily does it, it is known as abdication. Give up ही होता है एक तरीके से, renounce ही होता है, लेकिन ये normally यूज होता है इस तरीके से किंग की वाले केस के अंदर. Now abnegate is again renounce है, give up कर देना होता है. You say I won't do it, that is abnegate है. And abjure is also the same, renounce होता है. abjure करना is also renounce है, यानी give up करना है. आप कहते हैं इसके बाद नहीं करूँगा, जिसे कहते हैं रिटायरमेंट काइंड ऑफ थिंग. किसी ने renounce कर दिया तो वो वाला renounce हो जाता है, आप give up कर देते हो कि इसके बाद नहीं होगा, तो वो renounce है, give up है, छोड़ देना होता है. और एब्डिकेशन भी कहीं ना कहीं छोड़ देना होता है. तो इन तीनों का मतलब तो रिनाउंस ही हुआ. और एडजोर का मतलब क्या होता है? इफ यू जस्ट सी द वर्ड एडजोर, इट मीन्स अर्ज होता है, किसी को कन्विंस करना होता है, किसी को कहना होता है कि यार एडजोर, वो एडजोर करना होता है. इट मीन्स एडजोर इज टूवर्ड्स पॉजिटिव, अर्जिंग समवन, सेइंग समवन टू डू समथिंग, कन्विंस हो गया, और ये सारे के सारे आपके अदरवाइज हो गए. ओके, नाउ लेट्स सी द सेकंड क्वेश्चन. You can try it now. If you can just see duplicity, ascendary, and then guile and chicanery. Now what do you say? Duplicity. कहीं ना कहीं वर्ड से सुनने में समझ आ रहा है duplicate kind of है, isn't it? That is what we say duplicity. And ascendary. If you see this word ascend, ये तो राइज से एसोसिएटेड लग रहा है, तो ये राइज वाला होना चाहिए. गाइल करना, किसी को यू कैन से चीट करना होता है. डिसीट वी से, एंड द सेम डिसीट इज शिकैनरी, डिसीटफुलनेस. किसी को धोखा देने वाली जो कला है दैट इज शिकैनरी होती है, डिसीटफुलनेस है. एंड डुप्लिसिटी इज ऑल्सो द सेम इज डिसीटफुलनेस है. इन तीनों वर्ड का मतलब तो डिसीटफुलनेस ही है. नाउ दिस इज असेंडेंसी होती है. असेंडेंसी मीन्स असेंड है, मीन्स where you rise, where you ascend. It means this is
राइजिंग है, हैबिट ऑफ राइजिंग इन वंस पोजिशन और वंस लेवल, दैट इज असेंडेंसी हो जाएगा। ओके, असेंडेंट से बना असेंडेंसी हो जाता है। तो इट मीन्स इट इज फॉर द राइज, इट इज अगेन फॉर चीटिंग, इट्स अगेन फॉर चीटिंग, इट इज डुप्लिसिटी, इज अगेन डुप्लीकेट। वन कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड। इट मीन्स अगर आप ध्यान दोगे तो एक बिगाइल करना भी होता है, धोखा देना, वही बिगाइल और गाइल इज द सेम। शिकैनरी, यू अंडरस्टैंड दैट। ओके, ये वर्ड याद रखिए। हो सकता है प्रॉब्ली आपने कम लोगों ने सुना हो, बट ये दो वर्ड तो इजीली समझ आ रहे थे। गाइल और बिगाइल वर्ड याद रखिए, फिर आपको ये याद रहेगा शिकैनरी विकेटनेस होता है। ओके, then we see the word third one. What? Contrition, remorse, credence and penitence. थोड़ा बहुत पढ़ा होना चाहिए, let me say, but if you see the word remorse, remorse is regret होता है, and penitence is also the word regret होता है। He feels penitent means regretful कि ओहो यार ये अचीव नहीं कर पाया, तो थोड़ा दुख होता है। आपके मार्क्स नहीं आए enough that you were desiring, it means थोड़ा penitent होता है आदमी की, थोड़ा सा regretful होता है कि ओहो नहीं कर पाया। That is penitence है, that is remorseful है, and that is again the word contrition है। contrite एक word होता है, feel contrite, feel contrite, when you feel contrite means you feel रिग्रेटफुल, तो वही फिर रिमोर्सफुल हो गया, वही फिर पेनिटेंस हो गया, यानी आप वो पछतावा कर रहा है। तो इसका मतलब एक वर्ड आ गया क्रेडेंस। और अगर आपको क्रेडेंस वर्ड से अगर आपको याद है तो वी से द वर्ड क्रेडेंशियल्स। याद है आपको वर्ड? व्हेन यू गो फॉर एन इंटरव्यू और समथिंग, यू कैरी योर सर्टिफिकेट्स, दे शो यू, दे आर द क्रेडेंशियल्स यू हैव। कब आप बैठेंगे तो वो ये नहीं कहता जी अपने सर्टिफिकेट दिखाइए, शो मी योर क्रेडेंशियल्स, मीन्स दैट जस्टिफाई योर पोजीशन। क्रेडिट करने वाला मीन्स क्रेडेंशियल्स मतलब दैट प्रूफ योर ऑथेंटिसिटी, या आपके योर की या योर सर्टिफिकेट्स की किसी भी चीज़ की क्रेडेंस हो जाता है, यानी क्रेडेंशियल्स वाला। तो ये क्रेडेंस है। सो माई प्रेजेंस देयर प्रूव द क्रेडेंस दैट आई वॉज इनोसेंट, मीन्स मैं अदरवाइज जाता ही नहीं, तो क्रेडेंस हो जाएगा। देन फोर्थ वी से द वर्ड टेम्परेंस। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड टेम्परेंस? अगर आपको आपने वर्ड पढ़ा है टेम्परेट होना होता है, टेम्परेंट होता है जो वन हु लिव्स अ वेरी फ्रूगल लाइफ। याद है आपने एक वर्ड पढ़ा था ऑस्टेयर काइंड ऑफ। तो टेम्परेट करना होता है अपनी इच्छाओं पर रोक लगाना, काइंड ऑफ थिंग। लिव्स अ वेरी रिस्ट्रिक्टिव लाइफ, टेम्परेट होता है। तो डज नॉट इन्वॉल्व हिमसेल्फ इनटू काइंड ऑफ ग्रेटिफिकेशन, फिजिकल ग्रेटिफिकेशंस और डिजायर्स एंड ऑल, टेम्परेट हो जाता है। सोब्राइटी इज अगेन abstain from liquor है। सोब्राइटी इज अगेन abstain from liquor है। तो अब टेम्परेट भी abstain हो गया, सोब्राइटी भी abstain हो गया, एंड सेलिबेसी, यू नो इट वेल, सेलिबेसी मीन्स नॉट मैरिंग। वैसे याद रख सकते हैं, सेलिब्रेट कौन? ब्रह्मचारी को कह देते हैं, तो यानी वो सेलिब्रेट है। तो सेलिबेसी इज ऑल्सो रिस्ट्रिक्टिंग। इट मीन्स व्हाट इज लेफ्ट? ऑब्लिवियन इज द राइट आंसर। ओके, यहाँ पर हमारा एसिडेंसी इज द राइट आंसर, एंड हेयर वी हैड द एडजॉर इज द राइट आंसर। ऑब्लिवियन क्या है? इफ यू वांट टू नो, अनअवेयर ऑफ द सराउंडिंग्स होता है, अनअवेयर ऑफ द सराउंडिंग्स होता है, ऑब्लिवियन स्टेट होता है। इफ यू रिकॉल, शेक्सपियर wrote down one poem. We say that 7 ages. He was saying the man at after 95 or so, most of us are in a state of oblivion.
When a young child is born, 4, 5, 7, 10, 15 days is in the state of oblivion, means नहीं पता आसपास क्या हो रहा है, जैसे पड़ा है वैसे पड़ा रहता है. तो चाइना के लिए हम कहते हैं कि चाइना इज अ स्टेट ऑफ oblivion. उसे लगता है कि वो अकेले ही सब कुछ कर लेगा, आसपास क्या हो रहा है वो ज़्यादा बॉदर नहीं करता. लोग ऐसा मानते हैं oblivion स्टेट में होना होता है. ओके, तो दैट्स व्हाट वी से इज अनअवेयर ऑफ द सराउंडिंग्स होते हैं. नाउ व्हाट आई वांट टू टेल यू इज व्हेन यू कम अक्रॉस सच वर्ड्स, सी सारी डिक्शनरी सबको याद हो पॉसिबल नहीं होता है. ठीक है, तो व्हाट इज डिजायर्ड, ऐसे केस में आपको कुछ कनेक्शन वर्ड का याद रहना चाहिए. ये डुप्लीकेट से आया है, ये असेंड से आया है, गाइल बिगाइल याद करिए. फिर देन कॉन्ट्राइट हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट करना. कॉन्ट्राइट इज समथिंग कॉन्ट्रैक्ट से आता है, याद रखिए. रिमोर्सफुल सैड को बोलते हैं, पेनिटेंस रिग्रेट को बोलते हैं, एंड क्रेडेंस क्रेडेंशियल से समझ आ रहा था. ठीक है, देन टेम्परेट करना, ये वर्ड आपने अगर वर्ड पार मेडिसी पढ़ी है तो आपको आता होगा. टेम्परेट वही होता है. सोब्राइटी होती है, जिसने लिकर विकर नहीं पी होती, कंट्रोल्ड होता है, वो सोब्राइटी स्टेट में होता है. एंड सेलिब्रेट, मोस्ट ऑफ अस नो सेलिब्रेट इज समथिंग द वन हु does not marry. Someone who does not marry is celibate होता है. And here I told you critically, these are AB words and then AD is the other word. Okay, so kindly note down what the word meaning is. We'll do a few more like this. Now let's see these 4 more questions. One question is, read it. Whittle is the word. WHITTLE. Whittle, wheedle, and cajole and coax. If you do not know the word, probably you must have heard of the word cajole. No. Coax and wheedle. All these 3 means to flatter होता है. ओके, जस्ट टू फ्लैटर, बहुत ज़्यादा नहीं बट हल्का फुल्का काइंड ऑफ थिंग. इसे कोक्स करना, फ्लैटर इन, आप और भी अच्छा लिख सकते हो, इन ऑर्डर टू गेट थिंग्स डन और टू कन्विंस, यू कैन से. जिसे हिंदी में बोलते हैं मस्का मारना है, ये वाला कजोल करना होता है, ये कोक्स करना होता है, ये किसी को वीडल करना होता है, जिसे ईगो मसाज कहते हैं. समथिंग कोक्सिंग, कजोलिंग, एंड दिस इज वीडल हो जाता है. ओके, सो दैट्स व्हाट द केस इज. किसी छोटे बच्चों को आप कहते हो कि अरे बेटा तो बड़ा प्यारा बच्चा है, जा 2nd फ्लोर से मेरा फ़ोन उठा ला, क्या है, जस्ट ट्राइंग टू कोक्स, कजोल द गाय, दैट इज कोक्सिंग है, कजोलिंग है. ओके, ये वाला जो कोड होता है. एंड विटल, विटल इज टू, अगर आप विटल देखेंगे तो इसका मतलब है टू कट इन लार्ज पीसेस होता है. दैट इज व्हाट वी से, विटल, चॉप काइंड ऑफ थिंग. बट हेयर वी से दिस इज कोक्स है, कचोल है, फ्लैटर है, सारे एक जैसे वर्ड ही. ओके, नाउ वी कम टू द वर्ड कॉलरिक. We say the word choleric is the word, querulous is the word, petulant is the word, and equitable is the word. Petulant अभी अच्छा ओके हमने penitence पढ़ा था, सॉरी. हाँ, now querulous वर्ड तो समझ आ रहा है, क्वेरल वाला है. और choleric वाले वर्ड को याद रख सकते हो कि ये एसिडिक काइंड ऑफ है. क्लोरीन जैसा फीलिंग आती है, कॉलरिक आ जाता है, यानी बड़ा वो भी एसिडिक ही होता है, क्वेरलस ही होता है, क्वेरलसम ही होता है, कॉलरिक, क्वेरलसम. एंड पेटुलेट इज ऑल्सो द काइंड ऑफ जो चिड़चिड़ करने वाले होते हैं, बड़े इरिटेटिंग काइंड ऑफ पर्सन, दे आर ऑल्सो नोन एज कॉलरिक है. सो दे आर all 3 of them are the querulous people, complaining people, petulant people, जो चिड़चिड़े टाइप के होते हैं. तो इट मीन्स ये तीनों ही नेगेटिव वाले आ रहे हैं. एक ही बचता है हमारे पास इक्विटेबल, जो इक्वेट किया जा सके, इक्विटेबल है, किसी के बराबर रखा जा सके, तो ये हमें क्लियरली समझ आता है इक्विटेबल होता है. इफ़ यू रीड द क्वेश्चन, जस्ट ट्राई अ बिट. व्हाट हैपेंस इज, जब आप ये क्वेश्चन करते हो तो इन क्वेश्चंस को नोट डाउन करके रखिए कहीं पर. एग्जाम से पहले जो भी आपने क्वेश्चंस किए होते हैं उनको एक बार रिवाइज करके जाइए. से इफ़ यू प्रिपेयर फॉर एनी एग्जाम, 2-3 days प्रायर योर एग्जाम, यू डेफिनेटली फ्लिप पेजेस. इंग्लिश में अदरवाइज आप करोगे क्या,
ये कुछ करता है आदमी। तो जब पन्ने पलट रहे होते हो तो ये एक्सरसाइज आपने करी होती है, आपको दिखाई जाता है अच्छा कॉलरिक ये वो याद रहता है, बट एक बार तो करना ही पड़ेगा। तो कॉलरिक इज, क्वेरलसम इज, पेटुलेंट इज, ऑल इरिटेटिंग, लड़ाई करने वाले, और ये इक्विटेबल आ जाएगा। नाउ यू सी वो डोरमेंट होता है, लेटेंट होता है, नॉस्टैल्जिक होता है और इनर्ट होता है। ये तो इजी था क्वेश्चन। डोरमेंट स्टेज हमने पढ़ा है, वो जो व्हेन द ऑटम सीजन कम्स द trees fall of the leaves fall off the trees and then the seeds they dormant state में they keep lying beneath snow, that's what we say, there's dormant होता है। ये means almost inactive। and latent heat के बारे में कभी आपने 9th-10th में पढ़ा हो, अगर आप साइंस स्टूडेंट है, you know that exists, but बड़ा hidden टाइप की रहती है, एक्टिव नहीं होती, latent हो जाता है। same is the word inert। इनर्ट गैसेस आपने पढ़ी थी, दे आर सेम काइंड ऑफ थिंग। इट मीन्स अगर मैं देखूं तो इनर्ट, लेटेंट और डोरमेंट मैं कह सकता हूं काइंड ऑफ इनएक्टिव है, और मैं ऐसा भी कह सकता हूं नॉट वेरी एक्टिव है, ऐसा मान लीजिए। सो एक ही बचा हमारे पास, नॉस्टैल्जिक। You know, thinking about your past times and feeling very emotional, we call it nostalgic हो जाता है। So that is what the nostalgia is। कई बार कई जगह बुक्स में लिखा है इसका कि घर की बहुत याद आती है तब भी आप नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं, बट दो तरीके से इसको यूज़ करते हैं नॉस्टैल्जिक वर्ड को। ओके, नाउ लेट्स कम टू दिस। Abracadabra is the word, we must have heard it many times in movies, but this is a word for चांटिंग काइंड ऑफ मैजिशियंस यूज़ करते हैं, जादू वाले यूज़ करते हैं, आब्राकाडाब्रा होता है। देन वुडू इज ऑल्सो रिलेटेड टू मैजिक ओनली, सो दिस इज रिलेटेड टू मैजिक, चांटिंग के लिए होता है। इनकांडेशन इज दी चांटिंग ऑफ दी मंत्राज एंड ऑल, ये भी मैजिक वाले करते हैं, और आब्राकाडाब्रा वाला भी मैजिक से यूज होता है। यानी वेनल को छोड़कर बाकी तीनों वर्ड एसोसिएटेड विद मैजिक है, एंड दिस इज समथिंग वेनल होता है। वेनल इज समथिंग यू कैन से करप्ट, यू कैन से ब्राइब वाला जो होता है वो वेनल हो जाता है। इट मीन्स वेनल एक अलग वर्ड है और ये तीनों वर्ड अलग हैं। तो वर्ड आपको ये ऑप्शंस देखते ही समझ आने लगेगा कि ओके दैट इज व्हाट द राइट आंसर इज, प्रोवाइडेड यू नो अ बिट अबाउट द वर्ड। एक बार आपको कहीं करा हुआ होना चाहिए। अब आपने मान लीजिए ये 4 क्वेश्चन और 4 क्वेश्चन मैंने पहले कराए और 10, 12, 15, 20 वर्ड हमने लिख लिए। इफ़ यू कीप नोट इट डाउन इन योर नोटबुक, अगर आप सब कुछ ई बुक से करेंगे तो प्रॉबेबली हो सकता है इतना आसान ना हो, लेकिन आप इसे नोटबुक में कर लीजिए और नोट कर लीजिए। एग्जाम से पहले एक बार फ्लिप योर पेजेस, यू फाइंड इट इज ईजी। ओके, काइंडली नोट इट। Let's see a few more questions now. Copious, we say. Forget about these 4 questions. Well, let's do these two first. Copious, profuse, myriad, and gauche. If you know the word gauche, you have studied this word in word parmedici when you were doing it with me. Gauche, we said, the one who is the tactless person, does not know how to behave socially. That is gauche. Okay? The copious is profuse. You know, profuse क्या होता है? When the blood was profusely coming out of the wound, that we say profuse होता है. In large quantity, we say. Myriad is also innumerable होता है, large होता है, quantity में ऐसा होता है, innumerable होता है. I had myriad memories of my childhood. He says like that. Myriad मतलब बहुत सारी, myriad हो जाता है. Copious is also the same. Copious is also abundant जिसे बोलते हैं. यानी if you just see these 3 words, they mean abundant, they mean plenty. Profusely blood comes out, उसके लिए ब्लड वाले केस में profusely लगाते हैं. काउंटेबल में बहुत ज़्यादा काउंट वाले हों तो myriad लगाते हैं. copious is again plentiful होता है. तो ये तीनों वर्ड का मीनिंग क्या है? abundant है. ओके, नाउ द गॉश इज द पर्सन, यू नो इट वेल. हमने कहा था कि गॉश पर्सन टैक्टलेस होता है, अगर आपको याद है तो. नहीं याद है तो वर्ड पारमेडिसी पढ़िए, उसमें मिल जाएगा. बाकी वुंड के लिए प्रोफ्यूजली वर्ड याद रखिए.
मैरियाड मैंने कहा काउंट में यूज होता है, यूज इट। मैरियाड मेमोरीज है, ब्लड वॉज प्रोफ्यूजली कमिंग आउट ऑफ द वुंड है, ठीक है। अबंडेंस ऑफ कोल हो सकता है, ठीक है। कोपियस क्वांटिटी होती है, लार्ज के लिए कोपियस यूज करते हैं, ओके। देन असेटिक, ऑस्टियर, फ्रूगल एंड पेजोरेटिव। अगर आपको याद है तो असेटिक हमने बोला था सन्यासी होता है, आप अच्छे तरीके से जानते हैं। Ascetic is the one who lives alone due to religious purpose and does not really fall in any kind of worldly pleasures and all those things is ascetic होता है। तो ये तो वो आपका monk हो गया, नहीं, सन्यासी जैसे बोलते हैं, तो यानी ये दुनियादारी से दूर रहता है। तो ऑस्टियर भी तो वही पर्सन था, थोड़ी देर पहले मैंने लिखा भी था, ऑस्टियर मैंने कहा था वही बड़ा इकोनॉमिकल रहता है, लिमिटेशन में जीता है। तो ये भी फिर ऐसे ही हो गया जैसे इकोनॉमिकली रहता है। एंड देन फ्रूगल इज ऑल्सो इकोनॉमिकल होता है। फ्रूगल इज वी नॉर्मली यूज लाइक दिस, फ्रूगल मील वी से, फ्रूगल क्वांटिटी वी से, यानी बहुत कम वाली बात। इट मीन्स वी से। तो ऑल दीज थ्री वर्ड्स मीन्स व्हाट, इन तीनों वर्ड को देखो तो मतलब ये कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शन से एसोसिएटेड है, कमी से एसोसिएटेड है, बहुत कम वाले हैं। और दिस इज पेजोरेटिव, इज समथिंग, पेजोरेटिव कमेंट्स होते हैं लाइक टू harm the image, harm भी कह सकते हैं, to harm the image भी कह सकते हैं। pejorative statements normally we say pejorative होता है। तो ये humiliating हो गई, और जबकि ये सारे के सारे इकोनॉमिकल में हो गए, तो we know it well, ascetic, austere and frugal are all economical, and this is pejorative, is humiliating or some kind of harming someone, pejorative statement हो जाता है। Okay, now see the 11th question now. Same question this way, now the same question the other way we have asked you. It again is vocabulary only. आप रट के करिए तो आपको याद नहीं रहेगा, लेकिन आप कोई लॉजिक वॉजिक लगा के उस वर्ड को कहीं कनेक्ट करके याद रखें, या देखें यार ये कैसे चलता था तो ये कैसे आएगा, तो याद रहने लगेगा। It is like practicing. It is like practicing and then recalling the word with a kind of clue. Okay. Now see, kicking the bucket is a humorous dash for dying. To kick the bucket is a phrase, वैसे भी हम यूज करते हैं। To kick the bucket is a phrase we use. Kick the bucket का मतलब होता है to die, वो लिख ही रहा है। Kick the bucket is a humorous क्या, dictum, incantation, euphemism और addendum for dying। कोई बंदा मर जाता है तो उसके लिए हम मजाक में कह सकते हैं, मतलब जैसे थोड़ा सा ह्यूमरस वे में कह देते हैं कि ही हैज़ किक्ड द बकेट। किक्ड द बकेट का मतलब यह है कि उसने बकेट नीचे रख ली और ऊपर फांसी लगा दी और फिर से नीचे से बकेट को टांग मार दी, तो किक द बकेट हो गया, तो फिर मर गया, काइंड ऑफ, वहां से यूज करते हैं किक द बकेट। तो किक द बकेट इज ए ह्यूमरस क्या, ह्यूमरस, आंसर पहले मैं लिखता हूं, ह्यूमरस यूफेमिज्म आएगा। आंसर इज यूफेमिज्म होता है। यूफेमिज्म क्या होता है? यूफेमिज्म इज समथिंग यू यूज softer words for some kind of harsh statements, you say euphemism होता है। सॉफ्ट वर्ड यूज करते हैं हार्श स्टेटमेंट के लिए, डायरेक्टली नहीं बोलते। कोई मर जाता है तो हम ये नहीं कहते कि बंदा एक्सपायर हो गया। आज की डेट में क्या बोलते हैं? पास्ड अवे बोलते थे, आजकल तो एक और नए वर्ड से बोलते हैं लेफ्ट फॉर द हेवनली अबोर्ड, काइंड ऑफ थिंग। ये क्या है? ये नहीं कहते बंदा मर गया, डेड नहीं बोल देते, यही नहीं कहते एक्सपायर हो गया। तो दिस इज समथिंग यूफेमिज्म होता है। व्हेन यू गो इन दिल्ली मेट्रो, शी हैज़ ऑलवेज बीन अनाउंसिंग, जो हैंडीकेप पर्सन है उसको वो डिफरेंटली एबल्ड बोलती है। तो डिफरेंटली एबल्ड इज ए सॉफ्टवेयर वर्ड, ओके। जैसे नौकरी में से जो बड़ी कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर करती है तो छटनी कर देती है, जैसे स्क्रूटनाइज करना कहते हैं, नहीं तो वो स्क्रूटनाइज नहीं वर्ड बोलते, उसके लिए डाउन साइजिंग बोलते हैं। तो दिस इज समथिंग यूफेमिज्म होता है। सिमिलरली डेथ के लिए एक ह्यूमरस तरीके से बोला जाना यूफेमिज्म होता है, उसको फॉर डाइंग होता है। तो डिक्टम क्या होता है? डिक्टम इज ए प्रोवर्ब, नॉर्मली जो बोली जाती है वो डिक्टम हो जाती है। जिसे अडेज भी बोलते हैं, अगर आपने सुना, ADAGE होता है अडेज। इनकांटेशन अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था कि मैजिक में यूज होता है, चांटिंग ऑफ मंत्रास। एंड अडेंडम इज समथिंग ऐड ऑन करा जाता है, बुक के पीछे अडेंडम लगाया जाता है, जिसे अपेंडिक्स काइंड ऑफ बोलते हैं। अडेंडम होता है, ऐड ऑन, दैट इज अडेंडम होता है। उसका तो खैर कोई लेना देना ही नहीं था, तो ह्यूमरस यूफेमिज्म हमारे पास आ गया। The dash writer churned out a new book every week. Churned out करने का मतलब क्या होता है?
वैसे तो चर्निंग करते हैं दही की, चर्न करना होता है, यानी चर्न आउट करना मतलब फटाफट से बना बना के लो जी पकड़ो, यानी जल्दी से करता है। वो क्या कह रहा है, एवरी वीक वो चर्न आउट करके निकाल देता है। बुक लिखने में तो बहुत टाइम लगता है, लेकिन भाई वो राइटर ऐसा है जो हर हफ्ते एक बुक लिख देता है, चर्न आउट कर देता है। तो चर्न आउट से पता चल जाते हैं, और फिर यहाँ पर एवरी वीक से भी पता चल रहा है, इसका मतलब कुछ जल्दबाजी वाला काम कर रहा है। ठीक है, एम्यूलेट होना होता है किसी को कॉपी करना। इम्प्लिसिट होता है विच इज नॉट बीन गिवन डायरेक्टली बट होता है, यू इम्प्लाई, वो डायरेक्टली नहीं कहा होता। एक्सक्विजिट का मतलब होता है बड़ा, आपके पास बड़ा फोन है बहुत अच्छा, तो हम कहते हैं यार एक्सक्विजिट क्वालिटी की शर्ट आपने पहनी है, एक्सक्विजिट क्वालिटी का फोन आपके पास है, एक्सक्विजिट कार है, मीन्स ऑफ द हाईएस्ट क्वालिटी, वेरी एलिगेंट क्वालिटी, एक्सक्विजिट हो जाता है। एंड देन प्रोलिफिक विच इज वी से प्रोलिफिक इज प्रोडक्टिव होता है, प्रोलिफिक इज प्रोडक्टिव होता है। नाउ आई थिंक यू नो द आंसर। एवरी वीक वो निकाल रहा है, चर्न आउट कर रहा है, तो फिर मतलब वो प्रोलिफिक राइटर ही होगा, प्रोड्यूस करने वाला प्रोलिफिक राइटर आता है, और कोई वर्ड बनेगा भी नहीं यहाँ पर। एक्सक्विजिट हो सकता था, लेकिन वहाँ पर मीनिंग एवरी वीक से चर्न आउट से आइडिया लग रहा था कि उसकी क्वालिटी को नहीं बता रहा, उसके काइंड ऑफ उसको बता रहा है कि वो कितना फ्रिक्वेंटली काम करता है। द मैन्स वाइफ dash him for being a lazy obnoxious slob. What she is doing, man's wife is dash him for being a lazy obnoxious slob. Obnoxious kind of hate worthy kind of होता है, lazy भी बोल रही है, slob भी बोल रही है, मतलब वो बता रही है कि तुम बिल्कुल किसी लायक ही नहीं हो, lazy हो kind of thing, यानी कहीं ना कहीं उसे scold कर रही है। तो scolding वाला वर्ड ढूंढ लें, लेजी ऑब्नॉक्शियस स्लॉप से पता चलता है, इट मीन्स इंसाइट करना, किसी को भड़काना होता है। वो तो मिनिस्टर अगर स्टेज पे खड़ा हो जाए और पब्लिक को इंसाइट कर देता है कि, तो वो इंसाइटेड काइंड ऑफ होता है, फॉर्मेंट जिसे बोलते हैं। जूलियस सीजर आपने पढ़ा हो तो उसमें एंटनी ने ऐसा कर दिया। इंस्टिगेट करना भी किसी को प्रोवोक काइंड ऑफ ही हो जाता है। रिप्रोच करना का मतलब होता है ब्लेम करना, रिप्रोच इज टू ब्लेम, ओके। एंड फ्लाउट मतलब when you do not follow the law, फ्लाउट करते हैं, you flout the rules हो जाता है, you flout the rules, not follow होता है। तो वाइफ ने अपने हस्बैंड को क्या किया था, भड़काया भी नहीं था, प्रोवोक भी नहीं किया था इस तरीके से कि हाँ वो ऐसा कुछ नेगेटिव एक्शन ले ले, तो नेचुरली ब्लेम जरूर किया था, उसको रिप्रोच कर रही थी कि यार, कंडेम करने वाला रिप्रोच हो जाता है, दैट इज व्हाट द वर्ड रिप्रोच इज दिस हियर, ओके। एंड देन सीइंग द पिक्चर ऑफ आवर ओल्ड होम मेड मी फील डैश एंड नॉस्टैल्जिक। नाउ दिस इज अ हिंट विद मी, एंड लिखा है, नॉस्टैल्जिक लिखा है, तो नॉस्टैल्जिक अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था और एंड लिखा था। अगर एंड आ रहा है, नॉस्टैल्जिक आ रहा है, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा वर्ड ही आएगा जो पॉजिटिव टोन का होगा और वो कहीं ना कहीं इमोशंस को टच करता होगा, क्योंकि एंड लिखा हुआ है, बट लिखा होता तो अपोजिट हो जाता। डजंट अंडरस्टैंड? नाउ इट सेज फास्टिडियस, इनफेमस, इंडिग्नेंट एंड विस्टफुल से, ठीक है। नाउ फास्टिडियस इज द पर्सन, द वन हु इज वेरी पिक्यूलर इन डूइंग थिंग्स, मेटिकुलस हो जाता है, ओके। इनफेमस, ये मेटिकुलस होता है, यानी जो हु वांट्स एवरीथिंग टू बी डन परफेक्ट, वो फास्टिडियस होता है। हमने कभी पढ़ा भी था, डिफिकल्ट टू प्लीज सच ए मैन इज नोन एज फास्टिडियस होता है। इनफेमस क्या है, जो फेमस का उल्टा है, जो अपने बुरे कामों के लिए फेमस हो वो इनफेमस होता है, ठीक है। इंडिग्नेंट इज द वन इज वेरी पुअर काइंड ऑफ थिंग, ठीक है, हेट वर्दी काइंड ऑफ थिंग, वो इंडिग्नेंट हो जाता है। एक ही वर्ड बचता है हमारे पास, विस्टफुल। दिस ऑल्सो मीन्स इमोशनल होता है, तो विस्टफुल इज इमोशनल। नाउ आई नो कि फास्टिडियस द वन हु इज पर्टिकुलर इन डूइंग समथिंग, ओके। तो मेरे पास एक ही वर्ड आ गया, क्या, विस्टफुल हो जाता है। आप इसको विशफुल से भी याद रख सकते हो, याद रहेगा आपको आराम से, विशफुल, विस्टफुल। इट मीन्स सीइंग द पिक्चर ऑफ अवर ओल्ड होम मेड मी फील विस्टफुल एंड नॉस्टैल्जिक होगा, ओके। सो नाउ बाय डूइंग these 14 questions that I have done, I'm sure we have done around 40 words. I say we have done around 40 words. You have to revise this sheet at your end once or twice, and after a month when you do the same exercise, you realize you know many words.
वो फीलिंग से आपको समझ आने लगेंगे. काइंडली कीप डूइंग दिस. ओके, होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल ऑफ देम. आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं आपको हर एक वर्ड को एक्सप्लेन करके बता पाऊँ. थैंक यू वेरी मच माई डियर. गॉड ब्लेस यू.